Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Shakti Pumps India Limited Q1 FY25 earnings conference call. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star, then 0 on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Rohit Anand from Ernst & Young LLP. Thank you, and over to you, Mr. Rohit Anand. Good afternoon, everyone. Before we proceed, let me remind you that this discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risks that could cause future results, performance, or achievements to differ significantly from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To take us forward through the financial results and business developments and to answer your question today, we have the senior management of Shakti Pumps India Limited, represented by Mr. Dinesh Patidar, Chairman, Mr. Ramesh Patidar, Managing Director, Mr. Dinesh Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Ravi Patidar, Company Secretary and Compliance Officer. We will start the call with a brief overview of the past quarter by Mr. Patidar, followed by an interactive Q&A session. I will now hand over the call to Mr. Patidar. Over to you, sir. धन्यवाद रोहित, सभी को नमस्कार और आज इस कॉल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये वित्त वर्ष 2025 की शानदार शुरुआत की रिपोर्ट करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पहले तिमाही में हमने 568 करोड़ रुपए का राजस्व किया है, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही से 4 गुना ज्यादा है। हमने नेट प्रॉफिट में भी कई गुना वृद्धि की है, क्योंकि हमने जो टैक्स के पश्चात भी 1 करोड़ से 93 करोड़ लाभ हमने बढ़ाया है। इस बार जो 568 करोड़ रुपए का राजस्व है, उसमें EBITDA 136 करोड़ है। और इसी प्रकार हमारे परफॉर्मेंस का एक और कारण यह भी है कि हमने बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन किया है। रॉ मटेरियल की, चूंकि हमारी ऑर्डर बुक 2000 करोड़ है और रॉ मटेरियल की प्राइस में भी हमको निगोशिएशन करने में सुविधा मिली है, एक लेवल मिला है, जिससे कि हमने अपने आप को इंक्रीज करके हमारे वेंडर से और हमारे सप्लायर से अच्छे तरह से निगोशिएशन करके उनको प्लानिंग शेड्यूल दे के प्राइस पे थोड़ा काम किया है, जिससे हमको 3% हम हमारी रॉ मटेरियल की प्राइस को भी कम करने में सफल हुए हैं। इसमें कुछ काइजन भी किए हैं, कुछ हमने और इंक्रीमेंट भी किए हैं, जिससे कि थोड़ा सा उसमें भी हमको प्रॉफिट बढ़ाने में हम सफल हुए हैं। हमें उम्मीद है कि 2000 करोड़ के ऑर्डर अगले 15 माह में हम अच्छे तरीके से पूरे कर पाएंगे और आने वाले Q2 में हम तकरीबन 500 करोड़ का प्लान करने जा रहे हैं, जो कि कुछ बारिश भी है और पूरे ही हिंदुस्तान में बारिश का सीजन है, थोड़ा सा एग्जीक्यूशन पीछे होता है, इसका भी ये भी हमने ध्यान में रखा है। हमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर हमेशा ही ध्यान दिया है। शक्ति पम्प्स एक R&D कंपनी है और हम हमेशा ही R&D पे आगे बढ़ते रहे हैं। हमारे जो कुल पेटेंट 29 पेटेंट्स हैं, उनमें से 14 पेटेंट्स हमको प्राप्त हो चुके हैं। हमारी ऑर्डर बुक भी हम हमेशा की तरह आगे भी बढ़ाते रहेंगे, टेक्नोलॉजी के साथ में काम करते रहेंगे, निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और हम एक्सपोर्ट में भी अच्छी ऑर्डर बुक करने जा रहे हैं। वहां पर भी हमको अच्छे ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। और अब आगे के लिए फाइनेंशियल डिटेल के लिए मैं हमारे CFO दिनेश पटेल को कॉल सौंपता हूँ। ओवर टू दिनेश। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. During the Q1 FY25, our revenue was at rupees 567.6 crore, which increased from rupees 113.1 crore in the same quarter last year, reporting a growth of 4 times. Our EBITDA stood at rupees 135.9 crore as against rupees 7.9 crore in Q1 FY24.
EBITDA margins were at 23.9% in this quarter, as against 7% in Q1 FY24. The expansion in margin was largely driven by economies of scale and higher execution of orders, along with some benefits accrued due to declined raw material prices. Profit after tax stood at rupees 92.6 crore compared to rupees 1 crore in Q1 FY24. PAT margin stood at 16.3% as compared to 0.9% in the corresponding quarter of the previous fiscal. The company's long-term credit rating has been upgraded to A+ stable from India Rating and Research. With our strong balance sheet and the key metrics, we are confident in the timely completion of order book and consolidate our position in the market. With this, I now request the moderator to open the floor for question and answer. Thank you. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touch-tone phone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Deepak Purswani from Swan Investments. Please go ahead. Good afternoon, sir. Congratulations for very good set of numbers. Thank you, Deepak ji. सर, फर्स्टली अभी थोड़ा समझना था कि अगर हम लोग अभी ऑर्डर इनफ्लो की तरफ देखें, अभी नाउ एक्शन इज ओवर, तो आगे चल के अभी ऑर्डर इनफ्लो ट्रेजेक्टरी कैसे देखना चाहिए और स्पेशली कौन से स्टेट से हम लोग अभी आगे टारगेट कर रहे हैं, अगर आप उस पर कुछ इनसाइट शेयर कर पाए तो। नहीं, आप स्टेट वाइज पूछना चाह रहे हैं ना? हाँ, और अभी बेसिकली हमारा ऑर्डर इनफ्लो पाइपलाइन अभी कैसे दिख रहा है और उसको आगे कैसे देखना चाहिए, कौन से स्टेट से हम लोग अभी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने का कर रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका दीपक जी। बिल्कुल, हम लोग महाराष्ट्र में अच्छे नंबर्स पे हैं, महाराष्ट्र में हम अच्छा करने जा रहे हैं अभी, और उसके बाद आपको पता है राजस्थान में हम लोग करते हैं, हरियाणा में करते हैं, यूपी में करते हैं, तो अभी ये इन्हीं स्टेटों में हम आगे काम कर रहे हैं और अच्छे से करेंगे। और सर अभी सर कुछ इनसाइट अगर आप शेयर कर पाए तो अभी कितने टेंडर चालू है और कितना बिड पाइपलाइन ओपन है जहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नहीं, टेंडर तो ऑलरेडी पहले हो चुका है, उसमें टेंडर की कोई अभी चिंता नहीं है। 2 साल के लिए टेंडर हुआ था, अभी सिर्फ 3 क्वार्टर हुए हैं, बाकी सारे क्वार्टर बाकी हैं, और सभी जगह सारी गवर्नमेंट अच्छे से प्लान कर रही है, तो धीरे धीरे क्वांटिटी आप देख ही रहे हैं, बढ़ रही है और आगे और बढ़ेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। सर फिर इस साल का ऑर्डर इनफ्लो का टारगेट हम लोग को कैसे देखना चाहिए कि कितना हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑर्डर इनफ्लो। हाँ, ये बात बड़ी अच्छी है आपके दीपक जी, क्योंकि हमने जैसे पहले भी पुराने कालों में बताया है कि हमने जैसे लास्ट ईयर कुछ 1350 करोड़ किया था, उसके ऊपर हम पहले भी बोलते आए हैं कि हम 30% तो मिनिमम ग्रोथ करते ही रहेंगे। 30% आप ये मान के चलिए कि थोड़ा बारिश भी आने वाला सीजन भी है, चुनाव भी है, महाराष्ट्र में भी चुनाव है, हरियाणा में भी चुनाव है, बाकी जगह भी कुछ काम में थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए भी हम 1300 करोड़ मिनिमम करने की स्थिति में और 1300 करके रहेंगे। 1300 से 30% प्लस। अच्छा, और सर हम लोगों ने अभी इंक्रीमेंटली देखा है कि देयर आर सम न्यू प्लेयर्स हु आर आल्सो एंटरिंग इन दिस स्पेस, तो इसमें हमें आगे कैसे देखना चाहिए, यहाँ पे फिर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हमारे लिए बढ़ रही है या हम लोग कॉन्फिडेंट है कि हमारा ऑर्डर इनफ्लो या हमारा मार्केट शेयर मेंटेन रहेगा।
हाँ, अब नए आने वाले प्लेयर को तो हम भी नहीं रोक सकते हैं और कोई भी नहीं रोक सकता। आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, लेकिन हम अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी कंपनी और अपने प्रोडक्ट के ऊपर फुल कॉन्फिडेंट है कि जो टेक्नोलॉजी हमने पिछले 40 सालों में डेवलप की है और उसका जो ब्रांड हमारा जो मार्केट में है उसका फायदा हमको आगे मिलते रहेगा। नए प्लेयर आएंगे, अच्छा है और आना चाहिए, बहुत बड़ा मार्केट है, हम तो स्वागत करेंगे जो नए प्लेयर आएंगे उनके लिए भी। ओके, एंड सेकेंडली सर ऑन द मार्जिन ट्रेंड हमने ये क्वार्टर में देखा काफी सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट आया है। तो अभी हमारा सोलर प्राइस का प्रोक्योरमेंट प्राइस ये क्वार्टर में कैसा था? हाँ, वही मैंने बताया भी सही अभी मेरे भाषण में कि जो सोलार प्राइस में भी और दूसरे भी रॉ मटेरियल के प्राइस में हमने जो है बहुत अच्छे से निगोशिएशन किया, बहुत अच्छे से एडवांस में प्लानिंग दिया। फिर क्या रहता है, एडवांस में प्लानिंग देने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी थोड़ी सी कम होती है, थोड़ा वेंडर भी थोड़ा कॉन्फिडेंट होता है और उसको भी सप्लाई करने में इजी होती है। तो सारी चीजें जब आपके पास ऑर्डर बुक हाथ में हो तो आप अच्छे से निगोशिएट कर पाते हो। तो सोलर प्राइस में भी इस बार थोड़ी प्राइस कम हुई है, तो उसका भी हमको फायदा मिला है। वही कारण आप देख रहे हो कि हमारे मार्जिन में जो इजाफा हुआ है, जो आपने देखा है कि एक अच्छा मार्जिन में इम्प्रूवमेंट आपको आया है। तो वो कारण भी वही है कि जो करीब जैसा आप सोच रहे हैं कि रॉ मटेरियल में हम लोग 3% के आसपास हमारी प्राइस कम करने में सफल हुए हैं। अच्छा, तो करीबन 15 रुपए के आसपास हमारा सोलर पैनल का प्रोक्योरमेंट था ये क्वार्टर में। Hello. Sorry to माफी चाहूंगा मैं। We have more questions from the question queue. Yeah, I'm just continuing on the existing question only. दीपक, इसके लिए रेट के लिए अभी मैं आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि हम 2-3 लोगों से निगोशिएट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस कॉल पे ये बात करना संभव नहीं है। श्योर सर, मैं वापस क्यू में आऊंगा फिर आगे के क्वेश्चन के लिए। थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. The next question is from Ashish Ubganlava from InvestQ. You may go ahead, sir. Yeah. Sir, on the Ajmer pilot project, any updates on that? And मैंने इसके बाद component C के progress के ऊपर अगर आप थोड़ा बता पाएं कि how things are looking and उसमें हमारा competitive edge क्या है वो भी थोड़ा समझना था। If it goes through in the next maybe 1 or 2 years, how things look like. ये आशीष बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि देखिए ये जो कंपोनेंट सी है ये हमारा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है। और कंपोनेंट सी में या और भी बाकी लोग जो कॉल पे हैं उनको बताना चाहूंगा कि कंपोनेंट सी इज अ वेरी गुड स्कीम। इसमें फार्मर को भी करीब 50,000 रुपए साल की इनकम होती है और डिस्कॉम को 1 लाख रुपए साल की प्रॉफिट होता है। और डिस्कॉम का पूरा इन्वेस्टमेंट अगर फ्री में पंप दे तो 3-3.5 साल में सारा इन्वेस्टमेंट डिस्कॉम का फ्री हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस स्कीम को सक्सेस करने के लिए ऑलरेडी हमने अजमेर में, राजस्थान में डिस्कॉम के एक उसमें करीब हमारे पास कुछ 200-250 फीडर के आसपास हमको मिले हैं। उन फीडरों को हम सोलराइज कर रहे हैं और वो चैलेंजिंग जॉब है। यस, हमारे लिए भी पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन 150 करोड़ का एक पायलट प्रोजेक्ट है और इसमें हम तकरीबन 300 पंप अभी तक इंस्टॉल कर चुके हैं और वो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। अब आगे की रूपरेखा, जो एक चैनल हमारा चालू हो गया है, तो अब आगे इसमें स्पीड आएगी, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे जब कंपोनेंट सी फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो डिपार्टमेंट के लिए भी नया था और हमारे लिए भी नया था। अभी वो सब लाइनअप हो चुकी है सारी चीजें और वो संभवतः ये है कि अब अगले 2 क्वार्टर में हम इसको पूरा कर पाएंगे। कुछ 2 क्वार्टर के बाद आप बोल रहे सर कि इसमें थोड़ा सा ट्रैक्शन आएगा कंपोनेंसी के ऑर्डर्स में अपने लिए, ऐसा बोल रही है? राइट। हम क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट जैसे ही होगा उसके बाद सारे डिस्कॉम के एमडी को वहाँ ले जाके दिखाएंगे कि आपके लॉस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये प्रोजेक्ट है, जो ग्रिड कनेक्टेड पंप है। इसमें फार्मर की भी इनकम बढ़ रही है और इसमें डिस्कॉम के भी लॉस कम हो रहे हैं। तो ये और पैसा भी आपका 3.5 साल में फ्री हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सारे डिस्काउंट उसके लिए हमको ऑर्डर भी देंगे। और हमारी उसमें एक और टेक्नोलॉजी की बात करना चाहूंगा, तो इसमें हमारे शेयर होल्डर्स को ये भी पता होना चाहिए कि उसी समय जब पंप चल रहा हो ग्रिड में, पंप चल रहा हो और उसी समय उसको पानी की रिक्वायरमेंट कम हो, तो जो है वो बिजली, बची हुई बिजली ग्रिड को एक्सपोर्ट कर सकता है। इसमें शक्ति पंप्स के पास पेटेंट भी है, तो ये प्रोडक्ट हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा आने वाले समय में। ठीक है, हमारे पास पेटेंट है और चीजें भी है, लेकिन ये हिंदुस्तान के एक अच्छे सिस्टम में गिना जाएगा आने वाले समय में। ग्रिड कनेक्टेड पंप्स एक अच्छी स्कीम होगी देश की।
सर लेकिन बाकी किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसा बोल रहे क्या? मतलब एज ऑफ नाउ व्हाट एवर यू नो सेम टाइम उसी समय आप दूसरे लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, वो पंप बंद करेंगे, बाद में एक स्विच चालू करेंगे, ग्रिड में सप्लाई जाएगी, वो सब करेंगे, लेकिन मैनुअल करना पड़ेगा उनको। हम उसी समय बची हुई बिजली, अभी आपकी रिक्वायरमेंट अगर 1000 लीटर की और आपको पानी कम चाहिए, आप उसको 500 लीटर चाहिए, तो उसी समय बची हुई बिजली ग्रिड में सप्लाई कर सकते हैं। बाकी वर्ल्ड में जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल वो है कि पंप बंद करिए फिर ग्रिड में सप्लाई होगी। ओके ओके ओके। सो ये हमारा बेसिकली निश रहेगा इसमें, या फिर हमको शेयर करनी पड़ेगी टेक्नोलॉजी विद अदर्स? एनी देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन हमको लगता है यही हमारा सबसे बड़ा ये हेज रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष, थैंक यू। Hello participants, in order that the management addresses everyone questions, we have limited to 2 questions per participant. So the next question is from Harshil Solanki from Equiltree Capital. Sir, you may go ahead. हेलो टीम, गुड आफ्टरनून। सर मेरे थोड़े क्वेश्चंस थे, प्लीज मुझे चांस दीजिए। सर महाराष्ट्र ने अभी उनके स्टेट बजट में अनाउंस किया है कि वो 8.5 लाख सोलर पंप्स अलॉट करने वाले, तो हमारी कंपनी को उससे क्या फायदा हो सकता है और कब तक आप इसमें ऑर्डर्स का ट्रैक्शन देखते हैं? हाँ अर्शिल, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि 8.5 लाख पंप महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपने बजट में प्लान किया है, और 8.5 लाख अगर बजट में उन्होंने प्लान किया है तो अपना भी शेयर तो बनेगा उसमें। कोशिश जारी है, अभी भी हम स्पीड से काम कर रहे हैं और स्पीड से आगे काम करेंगे। और अपने लिए बड़ा फायदा होगा इसमें। ओके, और हमको बड़ा ऑर्डर एक्सपेक्टेड है राइट इसमें हम? राइट महाराष्ट्र इज अ स्ट्रॉन्ग। यस, ऑलरेडी महाराष्ट्र डिस्कॉम में हम लोग काम कर रहे हैं। जो हमारे पास आज भी जो पेंडिंग ऑर्डर है उसमें 1500 करोड़ का ऑर्डर आज भी पेंडिंग है। हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, हर इस क्वार्टर में भी हमने कुछ सप्लाई किया है वहाँ, और ऑलरेडी वहाँ पे डिमांड भी अच्छी है, अपना ब्रांड भी बहुत अच्छा है। गॉट इट। और सर अगर हम देखें मोटा मोटी तो 2400 करोड़ तो हम ये साल कर सकते हैं और अपना कैपेसिटी भी उतना ही है, तो नेक्स्ट ईयर हम कैसे ग्रो करने का प्लान करते हैं? क्योंकि अपना जो QIP का केपेक्स है वो तो 1 साल बाद आने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान है अपने ग्रोथ के लिए कैपेसिटी वाइज? हाँ अर्शिल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि देखिए अभी जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी गाइडलाइन पे बात की, क्योंकि मुझे मालूम है कि क्वेश्चन यही आने वाला है सबसे ज्यादा। तो अभी हम लोग 1300 करोड़ जो हमने 1350 करोड़ लास्ट ईयर किया था, उसमें 30% ग्रोथ करके हम हमारी टीम को पूरा टारगेट लेके उस पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे और हमारी स्किल बढ़ेगी हम उस पर आगे भी और आगे से अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि हमको दिख रहा है, हम इसीलिए हमने एक्सपांशन भी प्लान किया। एक्सपांशन की भी काम चालू है, कार्य प्रगति पर है, और उससे भी आगे जाने के लिए और स्पीड से हमारी पूरी टीम बिल्कुल रेडी है। सब लोग हमारे शक्ति पंप के काम आगे भी और अच्छा काम करने के लिए रेडी हैं। लेकिन जो मिनिमम हम जो कह रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बारिश का क्वार्टर भी आने वाला है और सीजन चुनाव का भी आने वाला है, इसलिए हम थोड़ा आपको कंजर्वेटिव फिगर दे रहे हैं कि हम लोग 1300 करोड़ तो करेंगे ही करेंगे। 1300 करोड़ पे 30% ग्रोथ टोटल होता है 1750 करोड़ के आसपास, तो जरूर करेंगे। ओके। और सर अभी अपना जो फ्री कैश फ्लो जनरेट होगा, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो वो हम कहाँ पे डिप्लॉय करने का सोचेंगे? क्योंकि हमने ऑलरेडी एक QIP किया है, तो जो सरप्लस फंड्स होंगे उसका डिप्लॉयमेंट कैसे प्लान करना है? हाँ, दिनेश पटेल हमारे इसके बारे में आपको बताएंगे। हर्षिल, इसके लिए एक्चुअली क्या है कि आपको 2 चीजें समझ के रखना पड़ेगी। एक तो हमारा एक्सपेंशन प्लान है जिसके लिए हमने QIP में से कुछ फंडिंग लिया हुआ है, कुछ फंडिंग हमें भी करना है उसमें। सेकंड थिंग जो है, हमारे पास EV का एक बड़ा प्रोजेक्ट है हाथ में, जिसमें हमको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है और जिसको हम विदाउट बैंकिंग फाइनेंस करना चाहते हैं। तो लेट्स सी आगे और भी जो नए डेवलपमेंट होते हैं, मैनेजमेंट उसके लिए आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट करता रहेगा। ओके। और दिनेश जी, अगर आप रिसीवेबल का नंबर दे पाए अभी ये क्वार्टर में तो चाहिए आपको? So there are many more participants remaining. मैं आपको सेपरेटली देता हूं। आंसर आई गेट बैक। 880 करोड़ का रिसीवेबल है आज की डेट में, 30 जून 2024 में बात करते हैं। Sir, so the next question is from Avi Agarwal from Arihant Capital Markets Limited.
Please go ahead, sir. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मुझे पूछना था कि हमने जो शक्ति ईवी मोबिलिटी है इसके बारे में हमने क्या प्लान किया है आगे जाते वक्त, एंड जो हम अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन डबल करना चाह रहे हैं उसकी हमारी क्या प्रोग्रेस है? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको हमारी शक्ति ईवी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम लोग पिछले 40 साल से मोटर बना रहे हैं। तो मोटर बनाने का जो हमारा एक्सपीरियंस है वो हमारे अपनी कंपनी को, अपने शेयर होल्डर्स को उसका फायदा मिलना चाहिए। उसके लिए हमने एक अलग शक्ति ईवी के नाम से एक कंपनी बनाई और उसके अंदर हम करीब 250 करोड़ रुपए आने वाले 2 सालों में इन्वेस्ट करेंगे और उससे जो बनने वाली मोटर और कंट्रोलर्स हैं उनमें 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और बसेस की मोटरें हम बनाएंगे। और उसके अंदर हम कुछ मोटरें ऑलरेडी बना चुके हैं। कुछ आज की तारीख में जो बस मैन्युफैक्चरर है उनके साथ में मिलकर ऑलरेडी रोड पे भी कुछ बसें हमारी 2000 के आसपास बसें रोड पे भी चल रही हैं। तो टेक्नोलॉजी को प्रूवन करने के लिए हमारी स्पीड अभी तक धीरे थी, अब धीरे धीरे हम उसकी स्पीड को भी आगे बढ़ाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी के ऑर्डर भी हो चुके हैं, वो भी अब लगना चालू हो रहा है। तो जैसे जैसे आगे इसमें ग्रोथ होगी हम क्वार्टर वाइज इस ग्रोथ के बारे में भी बात करेंगे, आपको भी बताएंगे। अग्रवाल साहब, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कंट्रोलर का एक्सपीरियंस भी हमारे पास है और मोटर बनाने का एक्सपीरियंस भी हमारे पास है। और इंडिया में अभी तक हमें कहीं बहुत ज्यादा स्केल पे ईवी की मोटरें बनती दिख नहीं रही है। अब वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्लान है कि आत्मनिर्भर भारत की तहत उनको इंडिया का मैन्युफैक्चर्ड ही लेना है, तो हमें उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है शक्ति पंप को, इसीलिए हमने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां करने का प्लान किया है। तो सर किन कंपनी से आपने टाई अप किया है अपना मोटर सप्लाई के लिए, एंड क्या टाइमलाइन हो सकता है इसका एग्जीक्यूशन का? आप बिल्कुल आप आइए अग्रवाल साहब, स्वागत है। मैं इस कॉल में जितने भी लोग अटेंड है उन सबको निमंत्रण दूंगा। आप आइए, मैं आपको फैक्ट्री पे दिखाता हूँ, बताता हूँ और बताऊंगा। अभी इस कॉल में कंपनियों के नाम लेना क्योंकि उनके साथ एनडीए साइन है, वो संभव नहीं है। अच्छा, और सर एक लास्ट क्वेश्चन कि अपना सोलर पंप का जो कैपेसिटी है वो डबल करने का गाइडेंस है, तो उसमें क्या प्रोग्रेस है? हाँ, उसमें प्रोग्रेस अच्छी प्रोग्रेस है, डबल करने का गाइडेंस भी है। उसके बारे में हमने एसबीआई और एलआईसी से इक्विटी भी पार्टिसिपेट की है, उसके बारे में भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। और उसमें भी प्रगति पे है चीजें। हम प्लांट एंड मशीनरी के कुछ ऑर्डर कर चुके हैं, कुछ करने जा रहे हैं। जमीन की रिक्वायरमेंट ऑलरेडी अलॉट मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है, उसकी रजिस्ट्री होने वाली है। वैसे जैसे चीजों को आगे क्लियरिटी होती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू अग्रवाल साहब, थैंक यू। The next question is from Rajesh Vora from JNY Venture. You may go ahead. दिनेश जी, फोर्ड रिजल्ट के लिए थैंक यू राजेश जी, थैंक यू। अमेजिंग तो ये है कि 3 साल में 21, 22 और 23 के फाइनेंशियल ईयर में क्यूमुलेटिव प्रॉफिट तीनों का हम टोटल करें मिला के लेस देन 65 करोड़ होता है, और आपने लास्ट 2 क्वार्टर में 180 करोड़ प्लस कर लिया। सो वेल डन। बट क्या 3-4 चीजें हैं, क्या 3-4 चीजें हैं जो इतना बड़ा चेंज आया है प्रॉफिट में, रेवेन्यू में, स्केल में, वो थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहे। बिल्कुल राजेश जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। एक्चुअली पिछले 5-6 सालों से हम इंतजार कर रहे थे कुसुम का, और हर कॉल में हम बोल रहे थे कुसुम प्रोग्रेस पे। कुछ जगह कुसुम 1 में कुछ इश्यूज थे, कुसुम 2 में अपने इश्यूज थे, है ना। इसीलिए हमने आज के इन ऐसे दिनों के लिए ही ये कंपनी खड़ी की थी। इसमें एनर्जी एफिशिएंट पंप में पिछले 20 सालों से काम इसीलिए किया था कि आने वाले समय में हमारे शेयर होल्डर्स को कुछ इसका फ्रूट्स मिले और उनको कुछ फायदा हो। तो अब कुसुम जो है स्टेब्लिश हो चुकी है मार्केट में, हर जगह से डिमांड आ रही है, हर कस्टमर उसकी बड़ाई कर रहा है, हर किसान उसको लेना चाह रहा है। सोलर पंप से फार्मर अपने पास ऑटोमेटिकली उसको जो है वो माइक्रो इरिगेशन पे कन्वर्ट हो रहा है, उसकी इनकम बढ़ रही है, गवर्नमेंट के लॉस कम हो रहे हैं। तो उसी स्पीड पे हम भी धीरे धीरे अपने आप को स्किल भी कर रहे हैं और अपने आप को आगे भी बढ़ा रहे हैं। कैपेसिटी भी है हमारे पास और इसमें और आगे हम इम्प्रूव करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही दिनों के लिए कंपनी लगाई थी, लेकिन किसी कारणों से कुसुम 1 में कुछ इश्यूज थे, कुसुम 2 में थे। अभी सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए और अब आगे आप देखिए हम इससे भी आगे और अच्छा काम करने जा रहे हैं। बढ़िया है, वेरी गुड। तो अभी ये कोई भी इश्यू, अभी बड़ा कोई इश्यू अभी पेंडिंग नहीं है कि इसमें कुछ गवर्नमेंट इंटरवेंशन चीज नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एवरीथिंग इज क्लियर?
नहीं, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर एंड बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट, फार्मर और सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों का रोल था। तीनों का बड़े अच्छे तरीके से तीनों ने अपने अपने एरिया में अच्छा एक्सपीरियंस ले लिया है। और आप देखेंगे कि जैसे ये 8.5 लाख पंप का जो महाराष्ट्र ने जो प्लान लिया, वो उसी का नतीजा है कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि उनके डिस्कॉम के लॉसेस कम हो और फार्मर भी चाह रहा है कि उनको उनकी खेती की इनकम में फायदा हो। बराबर है, सबका विन विन सिचुएशन और ऑल स्टेक होल्डर्स। राइट सर, राइट, एवरीबॉडी शुड विन विन। ये वेरी गुड। तो ये क्वार्टर में अपना 14,700 का पीएम कुसुम का कुछ हमने इंस्टॉलेशन किया, तो पूरी इंडस्ट्री का कितना हुआ रहेगा अप्रोक्सीमेटली? सीएफओ कैन शेयर द नंबर और यू हैव द नंबर। राइट, वो सर ऑलरेडी मार्केट शेयर क्या था ये क्वार्टर में? पीपीटी में अपडेट किया हुआ है, अराउंड 70-80,000 समथिंग है। 70-80,000, बराबर। तो हमारा मार्केट शेयर वो हिसाब से 20% के आजू बाजू रहेगा और लेस देन 20। ऐसा नहीं बोल सकते हैं आप। पुरानी अपडेट हुई है राजेश जी, इसमें ऐसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जो पुराने फिगर पोर्टल पे आए हैं, क्योंकि वो जिन स्टेट के पोर्टल पे से जो इन्फॉर्मेशन जो पुराने वेंडर्स जो हैं, जिन लोगों ने सप्लाई किए हैं पंप्स, उनका कुसुम 1, कुसुम 2 और कुसुम 3 में जाके उनके वो जो एंट्रियां हो रही है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि अपना मार्केट शेयर 20% है। लेकिन हाँ, हम बोल रहे हैं बाकी सब जगह हमारा मार्केट शेयर मेंटेन है। थोड़ा सा हमने स्लो किया था महाराष्ट्र में, हमारा पेमेंट महाराष्ट्र से नहीं आ पा रहा था, इसलिए हमने थोड़ी फिगर वहाँ पे हमने अपनी ग्रोथ थोड़ी स्लो दिखाई, ऑर्डर होते हुए स्लो दिखाई, क्योंकि हमको पेमेंट नहीं मिला था। अभी पेमेंट मिल चुका है, वहाँ से एक 60 करोड़ का, एक 50 करोड़ का चेक आ चुका है। अब हम वहाँ पे स्पीड बढ़ाने जा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पैसा हमारा टाइम पे आ रहा है, इनके पास बजट में पैसा होते हुए भी हमको पेमेंट कुछ इश्यूज के कारण वो लेट हो रहा था, तो हमने सप्लाई बंद कर दी थी। समझ गया। और ये क्वार्टर में, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वार्टर में गवर्नमेंट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू वुड बी हाउ मच? हेलो मिस्टर राजेश वोरा, प्लीज कम टू द फॉलो अप। वी मे रिक्वेस्ट फॉर द फॉलो अप। 78%. 78%. Okay, congratulations and all the best. Thank you. Thank you Rajesh, thank you. The next question is from Tushar Jain from Sumitomo Mitsui DS Asset Management. You may go ahead. हेलो। हाँ जी तुषार जी, बोलिए। हाँ सर, दो चीजें समझनी थी। पहली, आप कह रहे, आपने अभी 650 करोड़ किया है और आप कह रहे हो करीब 500 करोड़ अगले क्वार्टर भी कर दोगे, और पूरे साल में आप सिर्फ 1750 कह रहे हो, तो सेकंड हाफ में सरप्राइज एलिमेंट रखना चाहते हो आपकी? कुछ सीजनैलिटी है जिसकी वजह से आप ऐसी गाइडेंस दे रहे हो? नहीं, थोड़ा सा बारिश का समय हमें पता नहीं है। बारिश हरियाणा में, पंजाब में, या हरियाणा में, राजस्थान में किस शोर में कैसी आने वाली है, महाराष्ट्र में कितनी जोर से आने वाली है, तो उसमें क्या है, बारिश की वजह से थोड़ा सा स्लो हो जाता है। एक तो इंस्टॉलेशन, और दूसरा दोनों तीनों स्टेट में चुनाव भी आने वाले समय में, तो वो चुनाव के कारण भी थोड़ी मशीनरी इधर उधर हो जाती है, सिग्नेचर रहती नहीं है, सिग्नेचर नहीं हो पाता है। तो 2-3 ऐसे ये इश्यूज है जिनमें हमारा कंट्रोल नहीं है। बट अगर ये इशू नहीं हुए तो हम अच्छे से करेंगे, लेकिन इन इशुओं को भी फैक्टरिंग करते हुए हम बोल रहे हैं कि हम 30% ग्रोथ करेंगे। ओके। और दूसरा, आपने बोला था कि रॉ मटेरियल साइड में थोड़ी सी आपको बचत हुई है क्योंकि नेगोशिएट कर पाए हैं, तो यदि आप आइडिया देंगे कि मेजर रॉ मटेरियल क्या है आपका? मेजर रॉ मटेरियल सोलर पैनल है, स्टेनलेस स्टील है, कॉपर है। ये मेजर 3 हमारे रॉ मटेरियल है, स्टेनलेस स्टील, कॉपर और सोलर पैनल। तो इसमें तो मोस्टली सोलर पैनल पे नेगोशिएशन हुआ होगा। यदि मैं सोलर पैनल पे भी नेगोशिएशन हुआ है, स्टील पे भी हुआ है। अच्छा, ओके, ठीक है सर, थैंक यू तुषार जी। The next question is from Ajay Kumar Surya from Niveshaay. You may go ahead, sir. Sir, congratulations on this fantastic number. सर, मेरा क्वेश्चन, सर जैसे हम कुसुम वेबसाइट पर देखते हैं तो वहाँ पर बताते हैं कि अभी कुछ 13.5 लाख पंप्स का सैंक्शन हो गया है, और जैसे कुसुम योजना है जो वो 17.5 लाख पंप की है। तो सर मेरे को वही जानना था कि अभी आज दिन तक टेंडरिंग कितने पंप का हो चुका है कि जिसके ऑर्डर ऑलरेडी
अपन जैसी कंपनीज को ऑलरेडी मिल गए हैं, तो आप क्या वो बता पाएंगे कि कितने परसेंटेज ऑफ पंप्स का टेंडरिंग हो चुका है? अजय, ये जो परसेंटेज ऑफ पंप, वो नंबर ऑफ पंप की वजह से टेंडर नहीं हुआ है। ये टेंडर हुआ है रेट कॉन्ट्रैक्ट। एक रेट कॉन्ट्रैक्ट बुलाया था भारत सरकार ने, वो रेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उस रेट कॉन्ट्रैक्ट में नंबर्स को लेके कोई लिमिटेशन नहीं है। वो उसमें डिसीजन मेकर फार्मर है। 25 से 40% तक पैसा फार्मर को देना देता है, बाकी पैसा स्टेट अपनी तरफ से मिलाता है, बाकी पैसा सेंट्रल अपनी तरफ से मिलाता है। तो नंबर्स की कोई इशू नहीं है और टेंडर का कोई इशू नहीं है। ये रेट कॉन्ट्रैक्ट अगले 2 साल के लिए बुलाया गया था। अभी तक सिर्फ 3 क्वार्टर हुए हैं, बाकी क्वार्टर अपने हाथ में। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ कि 13.5 लाख पंप जो अभी बताते हैं कि सैंक्शन हो गया है, तो उन पंप का टेंडरिंग हो चुका है कि अपने को उसमें ऑर्डर्स मिल चुके हैं या उनके ऑर्डर्स आने ही बाकी है अभी तक मार्केट में, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। इसमें एक्चुअली ये ऑनगोइंग है। तो इसमें कैसा है कि जो सर ने जैसे बताया कि टेंडर वन टाइम होता है जो 2 साल के लिए हुआ है। अब मार्केट मोड टेंडर है तो इसमें स्टेट वाइज पोर्टल ओपन होते रहता है और क्वांटिटी अलॉट होती जाती है। तो अभी जो आपको सैंक्शन क्वांटिटी दिख रही है वो बराबर दिख रही है पोर्टल के थ्रू, और वही एक्चुअल है। उसमें से जैसे जैसे फार्मर चूज करेंगे वैसे वैसे अपने पास ऑर्डर आते जाते हैं। यहाँ पर डिसीजन मेकर फार्मर है, नंबर्स का कोई मीनिंग नहीं है। ओके, ठीक है। और सर सेकंड क्वेश्चन था जैसे सर कि आजकल जैसे स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र में खुद से भी काफी सारे पंप्स लगा रही है, और सर जैसे सब्सिडी में भी देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट खुद टोटल सब्सिडी जो है वो सेंट्रल और स्टेट की जो कुसुम में मिला के 60% जैसे सब्सिडी है उससे ज्यादा दे रही है। तो सर आगे जाके सर हमारा फोकस कैसे रहेगा कि हम स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर ही ज्यादा फोकस करें या हमारा रेवेन्यू मतलब कुसुम के टुवर्ड्स ही रखे, मतलब अपना फोकस एरिया कैसे देख रहे हैं आप आगे जाके? हम तो देखिए, हमारा फोकस एरिया, आप आगे की बात पूछेंगे तो हम तो इस पोजीशन पे आगे की तरफ काम कर रहे हैं कि हम कैश मार्केट की तरफ बढ़े। अब कैश मार्केट ऑलरेडी इंडिया में बढ़ चुका है। लोगों को अभी इंतजार करके उतनी देर रुकना नहीं है सोलर पंप के लिए कि वो थोड़ा पैसा दे के उसके लिए वहाँ रुके। अब धीरे धीरे कैश मार्केट की तरफ कन्वर्ट हो रहा है मार्केट। तो हमारा टारगेट आने वाले समय में हर तहसील लेवल पे, तालुका लेवल पे अपने छोटे छोटे डीलरों को सपोर्ट करते हुए आगे अपने प्रोडक्ट को उनके थ्रू मार्केट करने का है। जहाँ तक बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के काम का, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कुसुम स्कीम है उसके साथ भी काम कर रहे हैं और स्टेट के साथ भी काम कर रहे हैं। तो दोनों जगह हमको ऐसा लगता है कि अभी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि हम वहाँ पर अपने आप को, अपने ब्रांड को स्टेब्लिश कर पाए, जिससे कि आने वाले समय में हमको प्राइवेट मार्केट से कैश सेल में हमको उसका फायदा मिले। इसलिए हम ब्रांड पे भी काम कर रहे हैं और क्वालिटी पे भी काम कर रहे हैं। पर सर इसके अंदर जो ऑर्डर जो करना रहता है जैसे कुसुम में तो फार्मर खुद चूज करता है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है इसके अंदर भी मतलब फार्मर खुद चूज करता है या गवर्नमेंट अपने को मतलब L1 या वैसे टेंडर देती है कि वहाँ पर थोड़ा प्राइस कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा अपन को? नहीं, यहाँ L1 का कोई कंसेप्ट नहीं है। L1 को क्वांटिटी का कोई फिगर नहीं है। इसमें फार्मर ही डिसीजन मेकर है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी पैसा अपना पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें। जो लोग अच्छी सर्विस देंगे, जो लोग अच्छा ब्रांड बनाएंगे, उन्हीं को ऑर्डर मिलेगा। ओके, तो मतलब दोनों योजना में फार्मर ही चूज करेगा, स्टेट की हो या कुसुम की हो? यस, डेफिनेटली। एक लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे कि अभी क्योंकि सोलर मॉड्यूल अपना मेजर कंपोनेंट होता है रॉ मटेरियल का, तो और इसके अंदर क्योंकि डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट भी होता है, तो सर वहाँ पर अपन प्राइसेस कैसे देख रहे हैं कि जो मतलब क्योंकि अपने मार्जिन काफी अच्छे आए हैं लास्ट 2-3 क्वार्टर में, तो गोइंग फॉरवर्ड सर हम अपने मार्जिन किस तरीके से देख रहे हैं प्राइसेस को लेकर, और मतलब अपनी प्लानिंग क्या है कि जिससे अपने मार्जिन और स्टेबल हो सके? हाँ, बढ़िया। हम तो कोशिश हमारी जारी रहती है, क्योंकि इसमें DCR सेल की रिक्वायरमेंट है। आपको जैसा पता है कि अभी इंडिया में DCR सेल 8 से 10 गीगा की कैपेसिटी है, वहीं से अपने को लेना पड़ता है। आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोग और उसकी कैपेसिटी एनहांसमेंट पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे कैपेसिटी एनहांसमेंट होगी वैसे वैसे हमको ऐसा लगता है कि सोलर की प्राइस और नीचे आनी चाहिए। अभी हमको ऐसा लगता है कि 20 से 25% अभी गुंजाइश है और सोलर प्राइस को नीचे जाने की देश में। अच्छा, और सर जैसा ये अपन कुसुम के अंदर जो इंस्टॉलेशन या हेलो सर, अजय कुमार सूर्या सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वी रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन फॉलो अप। या श्योर। थैंक यू अजय, थैंक यू। थैंक यू सर। The next question is from Swati Chunjunwala from JM Financial.
You may go ahead, ma'am. मेरे क्वेश्चन देने का शुक्रिया। मुझे तो 2-3 छोटे क्वेश्चन थे। पहला ये कि हमारा इस बार जो 23-24% वाला जो मार्जिन आया है, तो ये क्या सिर्फ इसी क्वार्टर की बात है कि आगे चल के भी मतलब 22-23 टाइप का हम लोग मार्जिन कर सकते हैं? वो पहला था। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप एक आइडिया दे सकते हो क्या कि हमारा सबमर्सिबल वर्सेस सोलर पंप्स है, उसमें क्या मिक्स है, एंड आगे चल के जैसे हम सोलर पंप की तो कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या कुछ चेंज होगा या नहीं? ये 2 क्वेश्चन थे। ओके, स्वाति मैडम, पहले तो मार्जिन की बात बताओ। हम लोगों ने जो इम्प्रूवमेंट किया अभी निगोशिएशन करके, वो निगोशिएशन तो हमेशा ऑलवेज जारी रहता है, जारी रखेंगे। जितना भी जैसे जैसे क्वांटिटी इंप्रूव होती है वैसे वैसे आपको पता है कि एक्सपेंसेस कम होते हैं और मार्जिन इंप्रूव होता है, वो तो बिल्कुल जग जाहिर बात है। लेकिन जो निगोशिएट करके हम आगे से हमारे कस्टमर को जो निगोशिएट करके सोलर प्राइस में हम जितना कम कर पाएंगे, कर पाते रहे, वो करेंगे, जरूर करेंगे। और मार्जिन इंप्रूवमेंट पे ऑलवेज हम, हमारा काइजन और हमारा जो ड्रीम है वो तो यही है कि ऑलवेज जितने भी कोशिश पूरी जारी रहती है कि हम अच्छे तरीके से निगोशिएट करके अपने रॉ मटेरियल को खरीदें। और दूसरा, अभी आजकल क्या है कि हम लोग SAP पे हैं, तो हमको पूरा अच्छे से प्लानिंग मिल जाती है, तो हम अपने वेंडर्स को प्लानिंग दे पाते हैं अगले 3 महीने की, 4 महीने की। तो उसकी वजह से भी वेंडर थोड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं और रेट वो लोग अच्छे प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम मार्जिन को लेके आगे भी अच्छे और कार्य करते रहेंगे। अब बाकी आपने पूछा है कि सोलर और समर्सिबल पंप का, तो अभी आज की तारीख में तो मेजर सोलर ही है, हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं और वही हमारे लिए ऐसा लगता है कि हमको एनर्जी एफिशिएंसी का फायदा देगा। अच्छा, और सर एक और क्वेश्चन, तो जैसे आपने बस एक लास्ट चाहिए, आपने जैसे बोला था ना कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है, इस वजह से आपको पंप बंद नहीं करना पड़ता ग्रिड में पावर डालने के लिए, तो उसके वजह से क्या आप कुछ प्रीमियम चार्ज करते हैं आपका पंप्स पे एज अपोज टू जो बाकी प्लेयर्स है, उससे आपका क्या प्राइसिंग थोड़ा ज्यादा है, या फिर मतलब वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी का क्या फायदा हो रहा है? अगर आप उससे पे थोड़ा सा बता दें। थैंक यू। हाँ स्वाति मैडम, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। बेसिकली सबसे पहले तो क्या, हमको कुसुम सी का जो ये कंसेप्ट है ना ग्रिड कनेक्टेड पंप्स का, इसको इंडिया में प्रूव करना है। तो अभी हम लोग इसमें मार्जिन तो ठीक है, जो मार्जिन मिल रहा है मिलेगा और आगे भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये कोशिश जारी कर रहे हैं कि ये जो कंसेप्ट नया है पूरे देश में और पूरे संसार में, कि ग्रिड से भी पंप ग्रिड से भी कनेक्टेड है और सोलर से भी कनेक्टेड है, तो दोनों एक ही टाइम पे है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा नया है, लोगों को प्रूवन करके हमको देना पड़ेगा। हमारी कोशिश पहले ये जा रही है कि हम इसको इस सिस्टम को, ग्रिड कनेक्टेड पंप को सक्सेसफुली 5 साल इसको अंदर सिस्टम में लेके चला दें उससे, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ग्रिड कनेक्टेड पंपों का ये रहता है एग्रीकल्चर साइड पे, क्योंकि ग्रिड अवेलेबिलिटी की गारंटी नहीं मिलती है। तो अगर ग्रिड कनेक्टेड पंप है और आपने सोलर लगा के रखा और ग्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो ग्रिड में हम एक्सपोर्ट करने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। हालांकि हमने अपनी टेक्नोलॉजी में ये भी एक अच्छा उसमें भाग दिया है कि अगर ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो भी स्टैंड अलोन हमारी VFD जनरेटर का काम करते हुए पंप का काम तो फार्मर को करके देगी। ये भी हमारे प्रोडक्ट में खासियत है कि ग्रिड अवेलेबल नहीं है तो ग्रिड में एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन फार्मर को पंपिंग करके वो अपनी किसानी कर पाए, अपने खेतों को पानी दे पाए, ऐसी स्थिति में वो लगाएगा। तो ये सब चीजें हमको प्रूव करनी है और इसी को प्रूव करने के लिए हमने एक 150 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया है अजमेर डेस्कॉम का, और उसको हम प्रूव करके देंगे। जैसे ये प्रूव होगा तो हिंदुस्तान के सारे डेस्कॉम को हम इस ओर ले जाएंगे, वहां ले जाके उनको दिखाएंगे, और आने वाले समय में हमको लगता है कि यह कंपनी के लिए बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। The next question is from Rushik. Please go ahead. हेलो। यस। हाँ सर एक कंफ्यूजन है स्लाइड्स में, स्लाइड नंबर 30 और 31 में। स्लाइड नंबर 30 में हम दिखा रहे हैं कि इंडियन इंडस्ट्री सोलर पंप का जो मार्केट साइज है वो 150 बिलियन का है, और 31 में हम बता रहे हैं कि वो 1,47,000 करोड़ का है। तो सर वो मतलब वो समझना है कि क्या है ये कंफ्यूजन, थोड़ा वो दूर करना था। एक मिनट मैं स्लाइड देख लेता हूँ। इसको आपको अलग से इन्फॉर्म करते हैं।
ये एक्चुअली जो आप 49 लाख पंप देख रहे हैं ये कुसुम का पार्ट है और ये हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं। तो सर ओवरऑल बहुत कम दिखा रहे हैं, हम बता रहे कि सिर्फ 15,000 करोड़ की मार्केट साइज है, पर एक्चुअल में हम जो 31 में दिखा रहे वो कुसुम की हम दिखा रहे कि 1,47,000 करोड़ की मार्केट साइज है। नहीं, वो बिलियन INR में है, एक बार आप वापस चेक कीजिएगा। हाँ सर, दोनों बिलियन में ही है मतलब। नहीं, ये लैक्स में है, 49 लाख पंप है वो। नहीं सर, नीचे जो हम देते हैं ना मार्केट साइज बिलियन में, उसमें हमने 1470 बिलियन दिया है। तो एक बार चेक करके आपको अलग से इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है सर। और सर दूसरा ये पूछना था कि जैसे कि अगर हम जो अभी देख रहे हैं सक्सेस जो हमारे कुसुम में जो हमें मिल रहा है सोलर पंप में, और हमने उसके लिए आगे कैपेसिटी भी हमने डाली है, तो आपको लगता है कि जिस हिसाब से अभी जो ये जो पंप जो फार्मर्स के लिए भी बेनिफिशियल है और गवर्नमेंट के लिए भी बेनिफिशियल है, तो आगे हम और एग्रेसिव हो सकते हैं कैपेक्स में? और जो अगर हम आगे से अगर कैपेक्स प्लान करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी कम होते जाएगा बिकॉज स्केल बढ़ते जाएगा। तो आपका इसमें क्या व्यू है आगे के लिए 3 साल के हिसाब से? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्योंकि देखिए अभी इसीलिए हमने एक्सपांशन प्लान किया है। ये एक्सपांशन कंप्लीट होते से एक अच्छे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है, इसीलिए हमने एक्सपांशन आगे इन्वेस्टमेंट करके लाए हैं। ये जैसे जैसे होते जाएगा आगे हमको क्वांटिटी बढ़ाते रहना पड़ेगी, क्योंकि अपने देश में 4.5 करोड़ पंप की रिक्वायरमेंट है जो फार्मर्स हैं आज की तारीख में जो सोलर पंप यूज कर रहे हैं ग्रिड कनेक्टेड, और इतने ही पंप जो है आज की तारीख में डीजल और बाकी अपग्रेड पंप्स की रिक्वायरमेंट है। तो तकरीबन 8 से 9 करोड़ पंपों की देश में रिक्वायरमेंट है। हमारे अकेले की कैपेसिटी न तो इतनी है, न हम इतनी डालना चाहते हैं। धीरे धीरे हम कोशिश करके अपनी कैपेसिटी को एनहांस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपने आप को भी अपडेट करेंगे और आपको भी अपडेट करेंगे। और सर ये जो पंप हम जो इंस्टॉल करते हैं ये सब की लाइफ साइकिल कितनी होती है, मतलब रिप्लेसमेंट साइकिल कितने ईयर्स की होती है? देखिए VFD में जरूर 5 साल है, पंप में 10 साल है और सोलर पैनल में 25 साल है। सोलर पंप में 25 साल है। तो अभी सेकेंडरी सेल हमारी चालू हो गई है राजस्थान से। ओके। और यहाँ से मध्य प्रदेश से, जो कि पहले जो पंप लगे छत्तीसगढ़ में वो सब पंप कुछ रिप्लेसमेंट में भी आ रहे हैं, तो वो चालू है, वो मार्केट में हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन ये कि सर हम आगे जाके एबिटा मार्जिन जो है हमारा, हम वो किस रेंज में रखेंगे? जैसे कि हमने हिस्टोरिकली 14-15 किया है और अभी लास्ट 2 क्वार्टर में हमारा मार्जिन बहुत अच्छा है बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइस भी हमें सपोर्ट कर रहा है, और अगर हमारा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी हो रहा है, तो आगे जाके आपको क्या लगता है हम यहाँ से एबिटा मार्जिन जो 14-15 कर रहे उससे ज्यादा ही करेंगे एक सस्टेनेबल बेसिस पे? हाँ बिल्कुल, आप समवेयर अराउंड 18 से 20% के अराउंड क्या हम कर सकते हैं वो स्टेडी रेट पे? देखिए अभी पहले भी हम इसी क्वेश्चन का जवाब देते आए, आज भी दे रहे हैं कि हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम 15% 16% पे एबिटा मेंटेन करके रखें। अभी आपने ये क्वार्टर देखा होगा, इसमें हमको जैसी गुंजाइश मिली हमने आपको वो प्रॉफिट ला के दिया। लेकिन ये 15% वाला जो 15 से 16% वाला हमने अपनी टीम को टारगेट देकर रखा है, उसमें हम कोशिश लगा के इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे आने वाले समय में। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. The next question is from Bharat Shah from Ask Investment Managers Limited. Sir, you may go ahead. नमस्ते दीपक जी। मैं यही प्रश्न एक्चुअली पहले कर रहा था पर शायद लाइन कनेक्ट नहीं हो रही थी। आप ये लास्ट 2 क्वार्टर हम देखे, मैं वापस वो मार्जिन के प्रश्न पे आता हूँ क्योंकि वहाँ काफी कंफ्यूजन है कि ये कैसे ये नंबर्स है। तो मार्च 2024 के क्वार्टर देखे तो करीब 21.5% है, अभी जो गया वो क्वार्टर में 24% है। लेकिन हम पूरी हिस्ट्री देखे उसके पहले तो उससे दूर दूर तक ऐसे मार्जिन कभी दिखे नहीं है। तो एक लॉटरी जैसा नंबर्स लग रहा है। तो आप जरा उसके पर रोशनी डालोगे तो समझ में आएगा कि कैसे आप कह रहे हैं कि ये किस्म के मार्जिन सस्टेनेबल है, जो पूरी हिस्ट्री में कभी इसे दूर तक भी ऐसे नंबर नहीं आए, लेकिन 2 क्वार्टर में सडनली नंबर्स दिखे। तो प्रश्न उतना लेजिटिमेट है कि ये सस्टेनेबल मार्जिन है या वन टाइम या लिमिटेड पीरियड की लॉटरी जैसा है। सर इसमें एक्चुअली कैसा है कि जो अभी आप मार्जिन देख रहे हैं वो थोड़ा सा मार्जिन ऑफ स्केल का भी इसमें इम्प्रूवमेंट है प्लस रॉ मटेरियल का इम्प्रूवमेंट है।
हमारी डिपेंडेंसी अभी सोलर पैनल्स पे है और मेजर मार्जिन जो डिपेंड करते हैं सोलर पैनल की प्राइस पे डिपेंड करते हैं। आप देखेंगे लास्ट 3 क्वार्टर्स में सोलर पैनल की प्राइस सॉफन हुई है, जिसके कारण से हमारे मार्जिन इंप्रूवमेंट हुए। आगे के टाइम में क्या होता है वो हम आपको आगे अपडेट करेंगे, नेक्स्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या अपडेट्स आते हैं उसमें। बट हाँ, हमारा जो सोचना है कि एटलीस्ट हम एक वर्स्ट सिचुएशन में भी 15 to 16% का मार्जिन मेंटेन कर ही लेंगे। तो ये अभी हमारी गाइडलाइन है जो हमने पिछले क्वार्टर में भी दी थी और इस क्वार्टर में भी सेम ही दे रहे हैं कि रेवेन्यू बेसिस पे बात करेंगे तो हम 30% का ग्रोथ तो मिनिमम मेंटेन करेंगे और एबिटा मार्जिन लेवल की बात करेंगे तो 15 to 16% का ग्रोथ लेवल तो मेंटेन रहेगा। ये 30% आप ये साल के लिए कह रहे हैं या? हाँ, ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात कर रहे हैं हम, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम कभी गाइडलाइन नहीं देते हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो सर ने आपको रेवेन्यू की गाइडलाइन दी है वो 500 करोड़ की दी हुई है। नहीं, मैंने क्वार्टर की बात नहीं की। मैंने कहा कि 30% आप 2 बार कह चुके हैं, तो ये साल के लिए 30% सीमित है या आप अगले लॉन्गर टर्म पीरियड के लिए 30%? आगे के लिए भी हम 30% का 25-30% का ग्रोथ लेवल तो दे ही रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इस साल के लिए भी जो बात चल रही है उसमें 13 से 17 करोड़ हमने लास्ट ईयर किया था और अभी इस साल हम करीब 17 से 50 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू फेच करेंगे, ऐसा हमारा कहना। वैसे 3-4 साल तक आपको 25 से 30% नजर आता है। हाँ जी, इसीलिए हमने एक्सपेंशन भी प्लान किया हुआ है क्योंकि आगे हमको एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखता है। ये जो मार्जिन आपका अभी 23-24% है, उसमें कितना मार्जिन स्ट्रक्चरली आपके हाथ में सिक्योर्ड है और कितना एक एक्सटर्नल फैक्टर पे आधारित है? मोस्टली सर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसमें, जैसे रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो डिपेंड करती हैं। तो इकोनॉमिकल आप देखेंगे तो लास्ट एक बार में जो हिस्टोरिकल अपवर्ड हुआ था तो 65% जो रॉ मटेरियल है मेरा, तो 65% की रॉ मटेरियल प्राइस जो है मतलब ग्रॉस मार्जिन लेवल पे 35% बोलेंगे। तो 35% में अगर 65% में मेरा प्राइस हाइक होता है तो वो मेरे को रिवर्स इम्पैक्ट मारेगा मेरे ग्रॉस मार्जिन में प्लस एबिटा मार्जिन और पेट में। बिल्कुल। एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा। रिसर्च की दीपक जी ने जिक्र किया था कि कई सारी पेटेंट सप्लाई किए, करीब 13 या 14 पेटेंट्स ऑलरेडी मिल चुकी है। तो रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका क्या है, क्या एफर्ट्स हुआ है, कितने लोग हैं, क्या किस्म का वर्क हो रहा है, उसके पर कुछ प्रकाश डालोगे? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये तो मेरे लिए बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। इसको मुझे रिप्लाई करने में बहुत अच्छा लगता है। शक्ति बम्स एक R&D कंपनी है। यहाँ हमारे पास IIT दिल्ली, IIT मुंबई और सारे देश के IIT के जितने भी PhD ऑनर्स हैं उसमें से 8 PhD के स्पेशली पावर इलेक्ट्रॉनिक और मोटर्स में PhD किए हुए डॉक्टर कंपनी में हैं। करीब 50 मास्टर्स हैं और 100 के आसपास इंजीनियर्स हैं। अभी फिलहाल अभी कल ही हमने हमारी बोर्ड मीटिंग में हमारे एक IIT दिल्ली के जो मिस्टर प्रोफेसर भीम सिंह हैं उनको हमने डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर उनको अपॉइंट किया है। IIT दिल्ली के पवन कुमार हरी हैं, उनको हमने अपॉइंट किया है। एक रिटायर IAS ऑफिसर है जिन्होंने एनर्जी डिपार्टमेंट गुजरात में काम किया है। HS पटेल जिन्होंने मोदी जी के साथ काम किया है, HS पटेल, उनको हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में लिया है। मतलब आप समझिए कि 3 हमारे जो इस अपने अपने क्षेत्र के बड़े जितने नाम हो सकते हैं उनको कंपनी के बोर्ड में हम लाने की कोशिश की है। एक हमारे IIM के प्रोफेसर है जो इंदौर में उनकी मार्केटिंग और स्ट्रेटेजी में बहुत ही उनका बड़ा नाम है इंदौर IIM में, उनको हमने डायरेक्टर बनाया है। अभी हाल ही में हमने हमारे जो 17 साल से हमारे एक्सपोर्ट में उनका योगदान अच्छा था, हमारे अश्विन बूथरा जी का, उनको हमने डायरेक्टर बनाया है। तो ये कल ही की बोर्ड मीटिंग में ये सब चीजें हुई है क्योंकि हम R&D कंपनी है, R&D में आगे बढ़ना चाहते हैं तो R&D के लोग ही हमको मार्गदर्शन दे, उसमें हमसे कोई गलती नहीं हो। इसलिए बोर्ड में अब ऐसे लोगों को हम ले आए हैं और अब आगे आप देखेंगे कि और अच्छी अपना बोर्ड भी खूबसूरत होगा और कंपनी भी और अच्छे से आगे इन लोगों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ेगी। जी, थैंक यू दीपक जी। थैंक यू। The next question is from Darshil Pandya from Fininterest Capital. Sir, you may go ahead.
हेलो। यस दर्शिल, बोलिए। यस सर, नमस्कार सर। सर एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग कि हम जो कैपेसिटी डबल कर रहे हैं, ये हमारा टाइम फ्रेम क्या रहेगा? ये कैपेसिटी कब हम लाइव आ पाएंगे? 27 में ला पाएंगे। 27 में, ओके। एंड दूसरा क्वेश्चन ये था सर, मैंने थोड़ा सा मिस आउट कर दिया था, ग्रिड कनेक्टेड पंप के बारे में आप थोड़ा और बता सकेंगे सर, मतलब कैसे होता है? बिकॉज थोड़ा सा मैंने मिस कर दिया था स्टार्ट में। ठीक बात है। ग्रिड कनेक्टेड पंप मतलब जैसे अभी जो कुसुम स्कीम चल रही है, इस कुसुम स्कीम का पार्ट बी जो है वो ऑफ ग्रिड पंप है, जहाँ पर कि कुसुम बी का पार्ट जो ऑफ ग्रिड पंप है वो जहाँ पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। तो आज की तारीख में अगर बिजली का कनेक्शन किसी फार्मर को देना हो तो 5 HP के पंप के लिए उसको बिजली का कनेक्शन देना है, तार खंभा ट्रांसफार्मर लगाना है तो 2 लाख रुपए खर्च होगा, जबकि 2.5 लाख रुपए में सोलर पंप अवेलेबल है। तो सोलर पंप बहुत सारी गवर्नमेंट ने तय किया है कि नया कनेक्शन देने की बजाय उनको जो है ये पंप प्रोवाइड करा दें, और ये पंप 1 साल में 1 लाख की बिजली खाएगा। तो हर साल बिजली खाने वाला पंप अगर इलेक्ट्रिकल पंप प्रमोट करेंगे तो डिस्कॉम भी लॉस में आएंगे और फार्मर को भी समय पे बिजली नहीं मिलेगी। तो ये सोलर रहेगा तो फार्मर को भी समय पे बिजली मिलेगी। तो ये तो कुसुम बी हुआ। कुसुम सी जो ग्रिड कनेक्टेड पंप है, जहाँ पर ऑलरेडी कनेक्शन दिया हुआ है, जो खर्चा ऑलरेडी डिस्कॉम कर चुके हैं, सरकार कर चुकी है, वहां पर अगर फार्मर की इनकम बढ़ाई जा सके, जो मोदी जी की स्कीम में अन्नदाता जो है वो ऊर्जा दाता बने, तो वो स्कीम के तहत है कि उसके पंप को, क्योंकि उसका पंप 360 दिन उसको जरूरत नहीं है उसके खेत को पानी देने के लिए, उसको सिर्फ 180 दिन ही जरूरत है उसके खेत को पानी देने के लिए। तो 180 दिन वो बची हुई बिजली ग्रिड को सप्लाई करेगा, और वो बची हुई ग्रिड की जो बिजली है वो डिस्कॉम उसको अपने यूज में लेगा या आगे उसको बढ़ा के सेल करेगा। तो जो डिस्कॉम जो इन्वेस्टमेंट करके सारे पंप अगर फ्री में लगाता है तो 3.5 साल में डिस्कॉम का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्री हो जाएगा, और फार्मर को भी 50,000 रुपए साल की इनकम होगी। ये स्कीम इतनी अच्छी है। बराबर। एंड हम इसमें पंप्स दे रहे हैं अभी, जैसे आप बता रहे हैं। हम पंप सोलर स्ट्रक्चर पूरा सिस्टम हम दे रहे हैं, और हमारे पंप मोबाइल ऐप से ऑपरेटेड है, मतलब डिजिटल पंप है। सर हमने जो 200 करोड़ जो रेस किए थे उसमें से अभी आज तक कितना हमने यूटिलाइज कर लिया? अभी तक हमने कोई यूटिलाइज नहीं किया उसमें। अभी जो जमीन की रजिस्ट्री होनी है, उसके बाद उसके ऊपर जो प्लांट एंड मशीनरी के ऑर्डर दिए हैं, उसके बाद वो उसमें यूज होना चालू होगा। करेक्ट। एक फाइनल क्वेश्चन सर, इसमें सर हमारी जो सब्सिडीज है फॉरेन में, इसमें बांग्लादेश में जो एक सब्सिडी दिख रही है, दैट इज राइट नाउ, मतलब वहाँ पे अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग कुछ अभी करने वाले हैं या कैसा है? मतलब एक्सपोर्ट का प्लान कैसा है कंपनी का? हाँ, रमेश हमारे एक्सपोर्ट डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों ही हैं, वो आपको इसका रिप्लाई देंगे। हाँ जी, नमस्कार। ये हम लोगों ने जो बांग्लादेश सब्सिडी ओपन की ना, वो भी एक प्रोजेक्ट के लिए करके रखी है। तो एक तो हमने प्रोजेक्ट उसमें किया था 1 साल पहले, और अभी उसमें भी गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट रहता है वो, तो उसमें कुछ डिले हुआ है। अभी इस साल जिस फाइनेंस ईयर में हमको कुछ प्रोजेक्ट मिलने की हमको उम्मीद है। हम लोगों ने कुछ सर्वे भी किया साइट पे, तो इसलिए हम लोगों ने सब्सिडी को अभी कंटिन्यू करके रखा हुआ है ताकि हम वो प्रोजेक्ट कर सकें उसमें। ओके। एंड सर इसमें यूनिसेफ के और वर्ल्ड बैंक के फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं, जिनमें कि वहाँ उनकी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है कि वहाँ कंपनी अपने को सर्विस देने के लिए स्टार्ट करनी रहती है। इस कारण हमने वो कंपनी वहाँ स्टार्ट की है, और वो दूसरे जो गवर्नमेंट के बिजनेस भी हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ अच्छे बिजनेस वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि वो लोग भी इसी तरीके से काम कर रहे हैं कि फार्मर्स को पंप फ्री में सप्लाई कर रहे हैं। बांग्लादेश गवर्नमेंट भी ऐसी कर रही है। गॉट इट। एंड सर ये SBI म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा स्टेक डाइल्यूट किया है लास्ट क्वार्टर में, सो ये कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास इनके रिगार्डिंग, मतलब ये रहेंगे या कैसा रहेगा इनका? अब वो तो उनका डिसीजन मेकिंग है, लेकिन इस बारे में हम आपको इस कॉल पे कुछ बात नहीं कर सकते। जरूर आपको अलग से बात करके बताएंगे। ठीक है सर, शुक्रिया सर, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर। थैंक यू। Thank you, sir. The next question is from Ketan Athwalt from Robo Capital. Sir, you may go ahead. हेलो सर, केतन अठवले हियर फ्रॉम रोबो कैपिटल। सर मेरे को पूछना था, हमने ये क्वार्टर में कुसुम 3 के कितने पंप्स लगाए और हमें कुसुम 3 का रेवेन्यू कितना हुआ ये क्वार्टर में? कुसुम 3 में इस बार जो पंप लगे हैं वो अराउंड 15,000 पंप है, और रेवेन्यू अराउंड 445 करोड़ है। ओके,
और सर एक स्मॉल क्वेश्चन, जो हम नए इनिशिएटिव ले रहे हैं जैसे कंपोनेंट सी है, क्योंकि हमारे पास एक रफ रेवेन्यू फिगर है, इससे कितना रेवेन्यू पोटेंशियल है इसमें, एक रफ फिगर? अभी हमारे पास करीब 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो अजमेर में हम कर रहे हैं, वो एक पायलट प्रोजेक्ट है। एक बार उसके सक्सेस होने के बाद में फिर हम उसमें रेवेन्यू का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी देखते हैं। ओके सर, थैंक यू। The next question is from CA Garvit Goyal from Invest Analytics Advisory LLP. You may go ahead. Hello sir, am I audible? हाँ, ये बोलिए। Congrats for a good set of numbers sir. Just one question on the sustainability of the growth. आपने मेंशन किया कि 30% का ग्रोथ रहेगा आने वाले 3 से 4 साल, बट मेरा क्वेश्चन इस पे कैपेसिटी से रिलेटेड है सर। लाइक एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में हम 2400 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं, उसका सर हम मैक्सिमम कितना यूटिलाइजेशन कर सकते हैं? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड सेकेंडली सर, आपने मेंशन किया 2027 तक हमारा कैपेसिटी डबल हो जाएगा सोलर पंप के अंदर, तो सर 2026 में ग्रोथ कैसे आएगा सर मिनिमम 30% का? एक्चुअली जो मेरा एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो अराउंड 2500 करोड़ के लिए सफिशिएंट है। दूसरा, जैसे सर ने आपको पहले भी क्वार्टर्स में कॉन कॉल में बताया हुआ है और इन्वेस्टर मीट में भी बताया हुआ है कि ये जो हमारी कैपेसिटी है ऐसा नहीं है कि इसके बाद में हम बॉटलनेक आएगा, कुछ बॉटलनेक मशीनों की आएगी जिसको हम इसी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में बिल्ड करके थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमको अभी कोई बड़ा बॉटलनेक यहाँ पे नहीं दिखता है और एग्जीक्यूशन बहुत स्मूथली हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, ऐसा हमको लगता है। तो सर डबल होने के बाद 2027 में आप बोल रहे हो कि पंप वाला कैपेसिटी जो रहेगा वो 5000 करोड़ रेवेन्यू का हो जाएगा, राइट? हाँ, वो एक्चुअली क्या है, फिर अभी मेरा 5 लाख पंप एंड मोटर्स का कैपेसिटी है, उसको मैं 10 लाख पंप एंड मोटर का कैपेसिटी बिल्डअप कर रहा हूँ। वो जैसे ही हो जाएगा तो फिर ये मेरे लिए 5000 करोड़ तक के लिए सफिशिएंट कैपेसिटी रहेगा। तो सर इसके लिए टोटल केपेक्स आप लोग कितना कर रहे हैं? मैं अभी 250 करोड़ का प्लान कर रहा हूँ, जिसमें से 200 करोड़ का सपोर्ट मुझे SBI और LIC ने QIP के थ्रू दिया हुआ है। और वो जो ईवी वाला केपेक्स है वो इससे अलग है सर? ईवी वाला केपेक्स जो है वो मेरा इंटरनल इक्विटी से होगा, मेरा खुद का प्रोजेक्ट है, उसमें मैं खुद ही फंडिंग कर रहा हूँ। और वो भी 2026 में आएगा सर? वो टोटल 5 साल का प्रोजेक्ट है, बट हाँ इनिशियल स्टेज पे मैं बात करूँ तो अभी जो मेरा फर्स्ट फेज स्टार्ट हो रहा है वो अभी सितंबर 24 में इनोग्रेट करना है मुझे। समझ गया सर। एंड सर आपने जो ईवी का केपेक्स का बोला तो वहाँ मार्जिन हमारे किस तरीके के रहेंगे सर? वो अभी बहुत अर्ली क्वेश्चन है, एक बार वो चीजें आती है फ्लोर पे देन वी विल कमेंट ऑन दिस। इसमें डिसाइड करेगा वो कितने लोग, कितना चाइना से कितने फ्रेंडली लोग मटेरियल ला पा रहे हैं, क्योंकि हम अपना मार्जिन तो अपना हम फिक्स कर सकते हैं लेकिन हमारी प्राइस तो कंपटीशन में देखनी पड़ेगी ना। तो अभी तो जैसे हम लोग देख रहे हैं बहुत उसमें है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत इनको सबको इंडियन प्रोडक्ट लेना कंपलसरी हो जाएगा, तो मार्जिन अच्छा मिलेगा अपने को। लेकिन किसी कारण से वो चाइना से कोई स्क्रू असेंबली करने वाले लोग आ गए और उन्होंने प्राइसिंग पे कुछ डाला तो शायद प्राइस मार्जिन थोड़ा खींच सकता है, लेकिन अभी 99% तो ये चांसेस है कि हम लोग अच्छे मार्जिन पे अच्छी तरीके से अच्छा काम शक्ति ईवी में करेंगे। समझ गया सर। एंड जस्ट लास्ट क्वेश्चन सर, इस क्वार्टर में हमारा ऑर्डर बुक रिड्यूस हुआ है सर, तो गोइंग हेड आप करंट क्वार्टर में ऑर्डर इनफ्लो कैसा देखते हैं सर? 2000 करोड़ का ऑर्डर बुक भी हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छी फिगर है कि हमारे पास अच्छा ऑर्डर बुक है। लास्ट क्वार्टर में 2400 करोड़ था सर, 2400 करोड़ से रिड्यूस होकर 2000 करोड़ हो गया है, तो अपकमिंग क्वार्टर में आप ऑर्डर इनफ्लो देखते हैं सर? हाँ, आ रहे हैं ऑर्डर आ रहे हैं। अभी कुछ ऑर्डर तो पाइपलाइन में है और आगे भी ऑर्डर आते रहेंगे। और अभी की जो ऑर्डर बुक है वो भी सफिशिएंट है फॉर द नेक्स्ट 15 मंथ। अंडरस्टूड सर। थैंक यू वेरी मच सर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू। Ladies and gentlemen, due to time constraints, we will take that as a last question. I will now like to hand the conference over to Mr. Dinesh Patida for closing comments. आप सब लोग आए, हमारे हौसले को आपने बढ़ावा दिया और आपके सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दे पाया। और भी कोई आपको अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो और किसी तरह का कोई बात आप मुझसे जानना चाहें तो आप हमारी EY टीम से भी बात कर सकते हैं, हमसे भी बात कर सकते हैं और हमारे यहाँ आ भी सकते हैं, हम आपको अपना प्लान दिखा भी सकते हैं। तो मेरी आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। On behalf of Shakti Pumps India Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.